بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ ایک شدید سرد ترین رات تھی۔ میں چھت پر موجود ایک ایسے کمرے میں سو رہی تھی جہاں پر کاٹ کباڑ بھرا پڑا تھا۔ اس سرد ترین رات میں میرے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل تک نہ تھا۔ میں سردی سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ سردی کے مارے آج میری موت واقع ہو جائے گی۔ میرا پورا جسم نیلا پڑ رہا تھا۔ کمرے کا ایک دروازہ بھی ٹوٹا پڑا تھا، اسی لیے مکمل طور پر کمرہ بند نہ ہونے کی وجہ سے سرد ہوا کمرے میں پاس آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں نیند بے ہوشی کی کیفیت میں چلی جاتی، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے سردی سے بچانے کے لیے میرے اوپر کمبل ڈالا ہو۔ شدید سردی میں اچانک گرمائش کا احساس میرے دل کو تقویت پہنچا رہا تھا۔ نیند میں جانے سے پہلے بس میری آنکھوں نے یہ دیکھا تھا کہ جس نے بھی کمبل اوڑھایا تھا وہ ایک لمبے قد کا کالا لباس پہنے ہوئے انسان تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، میں اسے شکر گزار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ دوسرے دن جیسے ہی میں اٹھ کر نیچے گئی تو میری ساس عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ وہ شاید سمجھ رہی تھی کہ میں سردی میں ٹھنڈ سے اسی کمرے میں مر جاؤں گی، لیکن پھر بھی میں بھلی چنگی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ اب میں دھیرے دھیرے گھر کے کام کاج نمٹانے لگی۔ تبھی میری جوان نند اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ میں جلدی سے اس کا ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں چلی گئی۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو یقیناً میری ساس نے مجھے بہت مارنا تھا۔ میں جلدی ہاتھ پاؤں چلا رہی تھی، تبھی میری ساس کچن کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھ سے کہنے لگی، منحوس، کیا ایک ہی کام میں لگی رہے گی یا دوسرا کام بھی کوئی تجھے نظر آئے گا؟ چل اب جلدی سے مشین لگا لے، کپڑوں کا جو ڈھیر پڑا ہے وہ تیرا باپ دھوئے گا کیا آ کر؟ میں اپنی ساس کی بات سن کر کہنے لگی کہ نہیں اماں، میں ابھی دھو دوں گی سارے کپڑے، آپ فکر نہ کریں۔ میری ساس مجھے دیکھ کر منہ بنانے لگی، پھر کہنے لگی کہ ہاں ابھی دھو لے گی، جیسے تیرے پاس تو جادو کی چھڑی ہے کہ یوں گھمائی اور یوں کام ہو گیا۔ تیری ہڈ حرامی میں برداشت نہیں کروں گی، یاد رکھنا یہ۔ وہ نہ جانے کتنی گالیاں دیتی رہی، لیکن میں اب چپ چاپ کچن صاف کرتی رہی۔ اب ان کی یہ جلی کٹی باتیں سننے کی مجھے عادت ہو گئی تھی، کیونکہ میں ایک بیوہ تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ ویسے بھی میں ان کی نظروں میں ایک منحوس لڑکی تھی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جب سے ان کے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی، میں نے اس کا جینا حرام کر دیا تھا اور اسے اگلی دنیا میں پہنچا کر ہی دم لیا۔ وہ کہتی تھی کہ انہوں نے تو ترس کھا کر میرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ تو آتے ہی میرے بیٹے کو کھا جائے گی۔ ان کی یہ بات غلط بھی نہ تھی، کیونکہ میرا شوہر کمال ایک انتہائی خوبرو اور نوجوان آدمی تھا۔ ابھی میرے ساتھ اس کی شادی کو 4 مہینے ہی ہوئے تھے کہ اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ 2 مہینے تک ICU میں رہنے کے بعد بالآخر وہ فوت ہو گیا۔ میں پہلے سے ہی ایک یتیم لڑکی تھی۔ میں اپنی خالہ کے گھر رہتی تھی۔ خالہ کے گھر میں سوائے غربت کے کچھ بھی نہ تھا۔ ویسے بھی میری ساس کو اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی جو سارے گھر کا کام کاج کرنا جانتی ہو۔ یہ انہوں نے میرے اوپر رحم کھایا اور مجھے نوکرانی بنا کر اپنے گھر لے آئے۔ میری ساس کا کنبہ بہت بڑا تھا۔ میرے شوہر کے علاوہ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ میرے شوہر کمال سب سے بڑے تھے۔ یوں اچانک ان کی موت نے گھر میں جیسے کوہرام برپا کر دیا تھا۔ سب اس کی موت کا ذمہ دار مجھے ٹھہرا رہے تھے۔ اپنے شوہر کے مرنے کے بعد بھلا میں کہاں جاتی، کیونکہ خالہ اور اس کی فیملی یہ شہر چھوڑ کر دور جا بسے تھے۔ شاید خالہ بھی مجھ سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اسی لیے میری شادی کر دینے کے بعد انہوں نے پلٹ کر میری خبر تک نہ لی تھی۔ اب محلے پڑوس کے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے مجھے گھر میں جگہ تو دے دی تھی، لیکن اب میری قسمت میں سوائے چاکری کے کچھ نہ لکھا تھا، کیونکہ بات بات پہ میری ساس مجھے تانا دیتی کہ میں نے ان کے جوان بیٹے کو کھا لیا اور اب میرے سر پر بوجھ کی طرح اس گھر میں پڑی ہو۔ گھر کا سارا کام کاج کرنا میری ذمہ داری تھی، کیونکہ میری دونوں نندیں انتہائی ہڈ حرام اور کام چور تھیں۔ وہ کسی کام کو ہاتھ تک نہ لگاتی تھیں۔ اگر مجھ سے کوئی کام غلط بھی ہو جاتا تو میری ساس مجھے مارنے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ کبھی وہ میرے بال نوچتی تو کبھی مجھے چپلوں سے مارتی۔ میری نند اور دیور مجھے یوں پٹتا دیکھ کر بہت خوش ہوتے اور من ہی من میں ہنستے رہتے۔ شاید جوان بیٹے کے کھونے کا غم میری ساس کے اعصاب پر سوار رہتا تھا، اسی وجہ سے وہ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکالتی تھی۔ میں چپ چاپ ان سے پٹتی رہتی اور ایک حرف بھی شکایت کا زبان پر نہ لاتی، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے بولنے پر میری ساس مجھے گھر سے نہ نکال دیں۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی تو نہ تھا۔ پہلے میں اپنے گھر کے نچلے والے پورشن میں ایک چھوٹے سے اسٹور روم میں رہتی تھی۔
लेकिन अब चूंकि मेरे बड़े देवर की शादी होने वाली थी तो इसीलिए मेरी सास ने मुझसे वो स्टोर खाली करने का हुक्म दे दिया था। उस स्टोर में मेरी देवरानी के जहेज का सामान रखना था। अब उन्होंने मुझे हुक्म दिया कि मैं छत पर बने हुए उस वाहिद कमरे में सो जाया करूं जहां पर सिवाय गंध कचरे के कुछ भी ना था। मुझे वहां सोने पर खौफ महसूस होता था क्योंकि हमारे घर के बराबर में एक ऐसा घर था जो बरसों से खाली पड़ा था और मोहल्ले पड़ोस के लोगों का कहना था कि वो घर आसेब ज़दा था और उस घर से कभी कभी लोगों के चलने फिरने की आवाज़ें भी आती थीं। लेकिन चूंकि मुझे अपनी सास का हुक्म मानना था इसीलिए उसी गंदे कचरे में ही मैंने थोड़ी सी जगह सोने के लिए बनाई और वहां लेट गई। मेरे पास कोई गर्म बिस्तर तो ना था जो मैं अपने आप को ठंड से बचा सकती, इसीलिए नाचार ज़मीन पर ही लेट गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझ पर रात को कोई यूं मेहरबानी करेगा और गर्म कंबल मेरे ऊपर डालकर चला जाएगा। मैं हैरान भी थी कि जब मैं नींद की कैफियत में थी तो आखिर मैंने अपनी आंखें खोलकर उस शख्स को क्यों नहीं देखा जो उस गंद कचरे वाले कमरे में आकर चला गया था। अब मेरे देवर की शादी होने वाली थी। घर में उसकी शादी की तैयारियां चल रही थीं। मैं पूरे दिन एक सरूर की कैफियत में काम निपटाती फिर रही थी। मेरी सास नंदे रोज़ाना बाजार के चक्कर लगाती थी क्योंकि वो मेरी देवरानी की बरी तैयार कर रही थी। मैं जानती थी कि मुझे इस शादी में हरगिज़ शिरकत ना करने दी जाएगी क्योंकि मेरी सास के कहने के मुताबिक मैं एक मनहूस लड़की थी और अपनी मनहूसियत का साया नए दुल्हा दुल्हन पर डाल देती। कभी मोहल्ले पड़ोस की कोई औरत आ जाती तो मुझे तरस भरी नज़रों से देखती, लेकिन मैं जानती थी कि कोई भी औरत मेरी मदद नहीं कर सकती और ना ही मुझे इन मुश्किल हालात से निकाल सकती है। लेकिन चूंकि अब मैं छत पर रहने लगी थी तो ऐसे लगता था कि रोज़ाना ही कोई न कोई मेरे कमरे में आता है और मुझ पर गर्म कंबल डालकर चला जाता है। मैं हैरत से सोचती कि भला मुझ जैसी मनहूस लड़की से किसको हमदर्दी हो सकती है जो मुझ पर यूं तरस खा रहा है। फिर दूसरे घर में शादी थी और मेरी सास का कहना था कि जब तक शादी खत्म नहीं हो जाती तुमने उस कमरे से बाहर नहीं आना। अब मैं उस कमरे में छुप कर नीचे से आवाज़ें सुन रही थी जहाँ पर शहनाइयों और ढोल की आवाज़ आ रही थी। मैं उस कमरे में छुपी हुई खामोश बैठी थी। तभी दरवाजे से कोई अंदर आया। अंदर आने वाले ने मुकम्मल तौर पर एक काली चादर ओढ़ रखी थी। उस काली चादर से सिर्फ उसकी आंखें बाहर झांक रही थी। मैं खौफजदा सी उठकर खड़ी हो गई। मैं समझी कि शायद कोई मेहमान है जो भूले से इस कमरे में आ गया है। तभी वो आदमी मुझसे कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं घबरा कर उस आदमी से कहने लगी कि आप जो कोई भी हैं खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं। अगर किसी ने आपको मेरे कमरे में देख लिया तो वो मुझ पर बदचलनी के इल्जामात लगा देंगे। वो आदमी कहने लगा, घबराओ मत, अब तुम्हारे अलावा किसी को दिखाई नहीं देंगे हम, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने आप को तुम्हारे सामने जाहिर किया है। अब मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। फिर वो कहने लगा, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़्यादा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदलने आया हूँ। अगर तुम भी अपनी ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह खुशबाश गुजारना चाहती हो तो कल रात को सबके शादी में चले जाने के बाद तुम मुझे बराबर वाले घर में मिलने के लिए आना। तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन साथ ही तुमने मेरा एक छोटा सा काम भी करना होगा। तुम्हें अभी किसी की मदद की ज़रूरत है, ऐसे ही मुझे भी तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मैं खौफ से उस जिनज़ादे को अपने सामने यूं खड़ा देख रही थी जो मुझसे अपनी भारी आवाज़ में बातें कर रहा था। अब वो मुझसे कह रहा था, बोलो, करोगी मेरा काम। मैं बेचारगी से उसके सामने सर हिलाने लगी क्योंकि मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। तभी मेरे सामने ढेर सा धुआं उभरा और वो धुएं में गायब हो गया। भला एक जिनज़ादे को मुझ जैसी बेवा लड़की से क्या काम हो सकता था। मैं पूरी रात सो ना सकी। दूसरी सुबह जब मैं नीचे उतरी तो मेरी सास मुझे देखकर कहने लगी, अच्छा हुआ उसी कमरे में बैठी रही, वरना लोग तुम्हें देख लेते तो तरह तरह की बातें करते। आज रात सबने बारात लेकर जाना है तो इसीलिए तुम घर पर रुकोगी और घर की हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारे सर होगी। मैंने अपनी सास की बात सुनकर उनसे कहा कि अम्मा जी, मैं घर का ख्याल रखूंगी। अब मैंने अपनी सास से तो कह दिया था, लेकिन मैं अंदर से बुरी तरह डरी हुई थी क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद था कि उस जिनज़ादे ने मुझे ताकीद की थी कि कल रात 12 बजे के बाद मुझे उसी आसेब ज़दा घर में उससे मिलने जाना है। अब भला मुझे यूं अकेला घर में देखकर उसने तो आ ही जाना था इस घर में। पूरे घर में चहल पहल मची हुई थी। हर किसी को शादी में जाने की जल्दी हो रही थी। धीरे धीरे घर में सन्नाटा छाने लगा। सब घर वाले शादी में चले गए। मैं सोचने लगी कि इससे पहले कि वो जिनज़ादा यहाँ आए
میں ہی اس سے ملنے کے لیے وہاں چلی جاتی ہوں۔ آخر اس جنات کا مجھ سے ایسا کیا کام ہوگا کہ اسے میری مدد کی ضرورت تھی۔ جیسے ہی رات کے 12 بجے تو میں نے اپنی کالی چادر اٹھائی اور اسے اوڑھ کر میں سیدھی اسی گھر میں چلی گئی۔ یہ گھر ہر وقت کھلا رہتا تھا کیونکہ اس گھر کے دروازے ٹوٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی تو اس گھر میں موجود ایک طرف نیچے مجھے کالی چادر میں ملبوس وہی جن زیادہ بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کی چادر سے اس کی سفید آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا، تم ایک معصوم لڑکی دکھائی دیتی ہو، تم ناقدرے انسانوں کے بیچ میں رہ رہی ہو، تمہاری بہت جلد ان سب مصیبتوں سے جان چھٹنے والی ہے۔ یہاں سے دور ایک گھنا جنگل ہے جہاں پر ایک شیطانی عامل نے میری جن زادی بیوی کو قید کیا ہوا ہے۔ وہ عامل اسی بستی کا رہنے والا ہے۔ جب سے میری بیوی مجھ سے جدا ہوئی ہے میں کس قدر تکلیف میں مبتلا ہوں شاید تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ میں اپنے قبیلے سے بھٹکتا ہوا اس بستی میں آ گیا اپنی جن زادی بیوی کو آزاد کروانے کے لیے، لیکن میں اس شیطانی عامل کے آستانے تک نہیں پہنچ سکتا کیونکہ اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھ پر بھی عمل کر کے مجھے اپنا موکل بنا لے گا۔ وہ ہندو عامل ہے اور ہم مسلمان جنات ہیں۔ میری بیوی جب اس کی قید میں تھی تو اس نے ایک شیطانی عمل کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اسے ایک گھنے جنگل کے پرانے پیڑ میں قید کر دیا ہے۔ اس جنگل تک میری رسائی ممکن نہیں ہے، نہ ہی مجھے اس پیڑ کا پتہ ہے۔ اس عامل نے جس کپڑے پر عمل کیا تھا وہ اسی کے پاس ہے۔ اگر تم وہ کپڑا کسی بھی طرح سے حاصل کر لو تو میں اپنی جن زادی بیوی کو آزاد کروا سکتا ہوں، لیکن تمہیں اسی گھنے جنگل میں جا کر میری بیوی کو آزاد کروانا پڑے گا۔ میں تمہاری مدد کرتا رہوں گا لیکن میں اس جنگل میں جا نہیں سکتا کیونکہ وہاں پر خون خوار جنات اور چڑیلیں رہتی ہیں۔ ان میں ایسی بدروحیں بھی ہیں جو کسی بھی انسان کو دیکھ کر اس کے خون کی پیاسی ہو جاتی ہیں، لیکن میں تمہارے ہاتھ پر ایک تعویذ دوں گا جس کی وجہ سے وہ شیطانی مخلوقات تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائیں گی۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو تو بدلے میں تم مجھ سے جو چاہو گی میں تمہیں دوں گا۔ وہ جن زیادہ مجھ سے یہ سب کہہ رہا تھا اور میں ہکا بکا اس کی باتیں سن رہی تھی۔ بھلا مجھ جیسی کمزور دل کی لڑکی جس نے آج تک ایک مکھی تک نہ ماری تھی وہ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی تھی؟ پھر میں اس جن زادے کو کہنے لگی کہ میں تمہارا کام تو کر دوں گی لیکن میری غیر موجودگی میں میری ساس دوبارہ مجھے گھر میں رکھنے کو تیار نہ ہوگی۔ تو وہ جن زیادہ مجھے کہنے لگا کہ تم فکر نہ کرو، جب تم اس گھر سے میرا کام کرنے کے لیے نکلو گی تو میں تمہاری شکل میں تمہارے گھر میں موجود رہوں گا۔ تمہاری ساس یہ سمجھے گی کہ تم ہر وقت گھر میں ہی موجود ہو۔ پھر میں اس جن زادے کو کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دن دو سوچنے کے لیے، میں کل تک تمہیں بتا دوں گی۔ وہ ایک آس اور امید بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن جو کام وہ مجھے کرنے کا کہہ رہا تھا وہ بھی کسی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ پھر میں گھر آ کر سوچنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میری زندگی بھی دوسرے لوگوں کی طرح ہو جائے، میں بھی اپنی زندگی سکون اور آرام سے بسر کر سکوں۔ میں اس جن زادے کا کام ضرور کروں گی، بھلے اس کے لیے مجھے کتنی ہی بڑی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے۔ میں بھی اپنی زندگی بدلنا چاہتی ہوں، عام لوگوں کی طرح خوش رہنا چاہتی ہوں۔ پھر جب میری دیورانی اس گھر میں آ گئی تو مجھے اپنے فیصلے پر مہر ثبت کرنا پڑی، کیونکہ سب لوگ اس کے چاؤ چونچلے ناز نخرے اٹھا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ میرے پاس کچھ بھی نہ تھا۔ میں کسی بھکارن سے کم نہ تھی۔ میری ساس نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم اپنے گندے وجود کا سایہ نئی دلہن پر ہرگز پڑنے نہیں دینا اور اس سے دور رہنا۔ اب میں سوچ رہی تھی کہ کل کلاں کو اس نے مجھے اپنی دیورانی کی نوکرانی بنا کر رکھ دینا ہے۔ میری اس گھر میں کوئی اوقات نہ تھی۔ دوسرے دن میں نے جا کر اس جن زادے کو کہہ دیا کہ میں تمہارا کام کرنے کو تیار ہوں، لیکن بدلے میں مجھے بھی تمہاری مدد کی ضرورت ہوگی۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر خوش تھا، پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارا روپ دھار کر تمہارے گھر میں رہوں گا۔ اس بات کی خبر کسی کو نہ ہوگی۔ سب سے پہلے تمہیں اس شیطانی عامل کے آستانے پر جانا ہوگا اور وہاں سے وہ کپڑا اٹھانا ہوگا جس پر شیطانی عامل نے عمل کیا ہے۔ اس کپڑے کا رنگ گہرا سرخ ہے۔ وہاں پر جمعرات کے دن رش رہتا ہے، تمہیں جمعرات کے دن وہاں جانا ہوگا۔ میں نے اس جن زادے کی ساری باتیں ذہن نشین کر لی تھیں۔ اب میں واپس گھر آ گئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی میری ساس کھڑی تھی۔
जो मुझे शोला आबाज निगाहों से घूर रही थी। फिर उसने मुझे जोरदार धक्का दिया। मुझे कहने लगी कि कहाँ मुंह काला करती फिर रही हो, आज तक तुम घर से ना निकली और अब मैं देख रही हूँ कि जब से मैं शादी में मगन हुई हूँ तब से तुमने अपने पाँव बाहर निकालने शुरू कर दिए हैं। वो मुझे लातों से मार रही थी और मैं चुपचाप उसकी मार सह रही थी। मैं सोचने लगी कि बस कुछ दिन तक ये सब कुछ है, उसके बाद मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। मेरी नई देवरानी ये सब तमाशा देख रही थी और उसे शायद बहुत मजा आ रहा था। उसके लिए तो ये सब कुछ किसी फिल्म या ड्रामे से कम ना था। अब मेरी सास मुझे कहने लगी कि चल दफा हो, किचन में ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन मुझे सुबह तक धुले हुए मिलने चाहिए और किचन भी अच्छी तरह साफ करके सोना। अब मैं किचन में खड़ी सारे बर्तन धो रही थी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैंने अच्छा फैसला किया कि उस जिनजादे का साथ देने का सोचा। आज नहीं तो कल मेरी जिंदगी जरूर बदलेगी। फिर 2 दिन के बाद जुमेरात का दिन आ गया और आज मुझे असर के बाद उसी शैतानी आमिल के आस्ताने पर जाना था। आज घर में रश भी बहुत ज्यादा था और मुझे घर से निकलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। मैं शदीद मायूसी की कैफियत में छत पर गई तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने कोई लड़की खड़ी थी, वो भी मुझसे पीठ मोड़कर। उसने बिल्कुल मेरे जैसा लिबास पहना हुआ था और कद काठ में वो बिल्कुल मेरे ही जैसी थी। जैसे ही मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने मुड़कर मुझे देखा। मैं खौफ से उछल पड़ी। वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। अब मैं अपने आप को हैरत से सामने खड़े हुए देख रही थी, लेकिन जब उसने बात की तो उसकी आवाज कतरे भारी और मर्दाना थी। वो मुझसे कहने लगी, आज से तुम्हारा काम शुरू हुआ, अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा और तुमने मेरी मदद करनी है। मैं तुम्हें इस घर से निकलने में मदद दूंगा। ये मेरी काली चादर ओढ़ लो। जब तुम इस घर से निकलोगी तो किसी की नजरों के सामने ना आ सकोगी। वो जिनज़ादा जो मेरा रूप धार कर मेरे सामने खड़ा था, उसने अपने कंधों पर से ये चादर उतारी और मुझे पहना दी। मुझे कुछ घबराहट और खौफ सा महसूस हो रहा था, लेकिन बहरहाल अब मैंने उसके काम करने की हामी भर ली थी, इसीलिए मुझे उसके कहे हुए पर अमल करना था। जैसे ही मैं नीचे उतरी तो मुझे किसी ने देखा तक ना। अब मैं अपनी सास के सामने से बड़े आराम से गुजर गई, लेकिन उसने निगाह उठाकर मुझे देखा नहीं, क्योंकि मैं किसी को नजर नहीं आ रही थी। जब मैं घर से अच्छी खासी दूर निकल आई तो मैंने वो चादर उतार दी। अब मेरे कदम उस शैतानी आमिल के आस्ताने पर थे, जो एक हिंदू था और अब काला जादू करने का माहिर था। उस आमिल के बारे में मैं 2-3 दफा अपनी सास के मुंह से भी सुन चुकी थी कि वो किस कदर भयानक धंधा करता था। मुझे जाते हुए डर लग रहा था, क्योंकि मैं एक नौजवान लड़की थी और शैतानी आमिल के पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। ये भी सुनने में आता था कि वो शैतानी आमिल नजर बंद करके किसी भी औरत के जहन को सुन कर देता था। अब मुझे एहतियात से काम लेना था। मैं चुपचाप जाकर उसके आस्थाने पर बैठ गई, लेकिन मेरी मतलाशी नजरें चारों तरफ उसी कपड़े को ढूंढ रही थी जो गहरे सुर्ख रंग का था। वहां पर एक बारीक सी रस्सी बनी थी जिस पर मुख्तलिफ रंगों के कपड़े टंगे हुए थे। उन कपड़ों पर मुख्तलिफ शैतानी नाम लिखे हुए थे। न जाने अजीब सी बदबू पूरे माहौल पर छाई हुई थी। वो आमिल एक लीमू पर कोई दम कर रहा था। फिर उसने सामने बैठी हुई औरत के सामने ही चाकू से उस लीमू को काटा तो उसमें से खून निकलने लगा। मुझे ये सब देखकर झुरझुरी सी आ गई। अब वो आमिल उस औरत से कहने लगा कि तेरी जेठानी ने तेरे ऊपर काला जादू करवा रखा है। इस जादू का तोड़ जभी होगा जब तू मुझे सदके की एक काली मुर्गी और बकरे का गोश्त ला कर देगी। साथ ही साथ मुझे वो कीमती जेवर भी चाहिए जो तेरे पास रखा हुआ है, जो तूने अपनी सास की अलमारी से चुराया था। वो औरत उस आमिल के मुंह से ये इंकशाफ सुनकर उछल पड़ी। शायद उसे मालूम नहीं था कि उसने जिन्नात के जरिए ये सब पता करवा लिया था। वो वाकई में कोई भयानक जादूगर था। मैं कदरे पीछे होकर बैठी थी, लेकिन मेरी नजरें उसी कपड़े को देख रही थीं जो एक गहरे सुर्ख रंग का था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे एक मोमबत्ती जलती हुई नजर आई। मैंने धीरे से वो मोमबत्ती नीचे गिरा दी। एकदम से ही उस मोमबत्ती की लौ ने आमिल के कपड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके कपड़ों में आग लग गई। अब उस आस्ताने में हर तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वो शैतानी आमिल चीख कर अपने आस्ताने के मुरीदों से कह रहा था कि किसकी बेध्यानी में ये हुआ है। बस मुझे अपना काम करना था। मैंने चुपके से उस रस्सी से वो लाल रंग का कपड़ा उतारा और मैं सीधी बाहर निकलती चली गई। खौफ से मेरी टांगें भी कांप रही थी।
لیکن پھر بھی میں اپنا دل مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب میں سیدھی اسی آسیب زدہ گھر میں پہنچ گئی، لیکن اس آستانے سے نکلنے سے پہلے میں وہ کالی چادر اوڑھنا نہ بھولی تھی۔ اب اس کھنڈر گھر میں بیٹھے میں اسی جن زادے کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی میرے سامنے دھواں پھیلا اور اس دھوئیں میں سے وہ جن زادہ باہر آیا تھا۔ میں نے اس کے سامنے وہ کپڑا پیش کیا تو وہ خوش ہو گیا۔ مجھے چونکہ گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، اسی لیے شدید بھوک بھی لگ رہی تھی۔ پھر اس جن زادے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور میرے سامنے لذیذ پکوان آ گئے۔ میں حیران تھی کہ کیسے اس نے میرے بنا بولے ہی میری بھوک کو پہچان لیا تھا۔ اب میں وہ لذیذ پکوان کھا رہی تھی، کیونکہ میری ساس مجھے ڈھنگ سے کھانا بھی نہ دیتی تھی۔ جب میں نے خوب سیر ہو کر پیٹ بھر لیا تو وہ جن زادہ مجھ سے کہنے لگا کہ اب تمہیں اسی جنگل میں جانا ہوگا، وہ بہت خطرناک اور بھیانک ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اسے آسانی سے پار کر لو گی۔ اس نے مجھے ایک تعویذ دیا جو میں نے گلے میں پہن لیا۔ وہ لال رنگ کا کپڑا میرے پاس ہی تھا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میری آواز تمہیں اس جنگل میں بھی سنائی دے گی۔ جب جب تم کوئی غلط رخ اپناؤ گی میں تمہیں بتاتا رہوں گا کہ تم کس رخ پر جا رہی ہو۔ اب اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا تو میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی میرے کانوں میں ڈھیر ساری خوفناک آوازیں آنے لگی۔ میں نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ اب میں تھر تھر کانپنے لگی، کیونکہ میں اسی گھنے جنگل میں کھڑی تھی۔ وہ جنگل میری سوچ سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ دائیں طرف بہت سارے کھنڈر تھے اور بائیں طرف پرانی قبریں تھیں۔ درخت اور جھاڑیاں اتنی تھیں کہ راستے بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ بھلا میں ان کانٹے دار جھاڑیوں کو کیسے پار کر پاتی؟ میں ہراساں سی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے اتنا پتا تھا کہ وہ جن زیادہ میری مدد کرنے کے لیے اس جنگل میں نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ شیطانی قوتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سنو بیٹا، میری مدد کرو۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے ایک بوڑھی عورت کی آواز سنائی دی۔ وہ بوڑھی عورت رو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہاں پر میری بیٹی زخمی حالت میں پڑی ہے، تم اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ میں اسے اس جنگل سے باہر شہر میں لے جا کر علاج کروانا چاہتی ہوں۔ بظاہر وہ بوڑھی عورت بہت دکھی نظر آ رہی تھی۔ میں پلٹی اور اس کے ساتھ چلنے لگی۔ تبھی اچانک میرے کانوں میں اسی جن زادے کی آواز آئی جو مجھے کہہ رہا تھا کہ فوراً پلٹو، یہ بوڑھی عورت ایک خطرناک چڑیل ہے، تمہیں یہ اپنے ساتھ لے کر چلی جائے گی اور وہیں قید کر دے گی۔ میں خوف سے کانپتی ہوئی فوراً ہی پلٹ کر بھاگنے لگی۔ پیچھے وہ بوڑھی عورت زور زور سے چلانے لگی کہ رکو رکو بیٹا، میری مدد کرو، لیکن میں خوف سے بھاگے جا رہی تھی۔ تبھی میرے کانوں میں اسی جن زادے کی آواز آئی۔ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ فوراً ہی ایک گول دائرہ زمین پر بناؤ اور اس میں کھڑی ہو جاؤ۔ اب میں نے جلدی سے زمین پر ایک گول دائرہ بنایا اور میں اس کے اندر کھڑی ہو گئی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس چڑیل کی خوفناک شکل میرے سامنے تھی۔ وہ مجھے کافی دیر تک ڈراتی رہی، دھمکاتی رہی، لیکن میں اس دائرے سے باہر نہ آئی۔ تنگ آ کر وہ خود ہی وہاں سے غائب ہو گئی۔ جب میں نے اس کے جانے کا یقین کر لیا تب میں اس دائرے سے باہر آئی۔ جا بجا کانٹے دار جھاڑیاں اور گھنے درخت تھے۔ جب بھی میں کسی جھاڑی کے پاس سے گزرتی تو اس کی سرسراہٹ سے مجھ پر خوف طاری ہو جاتا۔ ابھی میں زیادہ دور نہ گئی تھی کہ مجھے سامنے سے چلتے ہوئے دو شیطانی جنات نظر آئے۔ وہ مجھے اس جنگل میں دیکھ کر وہیں رک گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو آدم زادی، چلو ہم اسے پکڑ لیتے ہیں اور اسے اپنے دیوتا کے سامنے اس کی بلی دیتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہمیں انعامات سے نواز دے۔ اب وہ مجھے پکڑنے کے لیے میری طرف آ رہے تھے۔ میں خوف سے چیختے ہوئے بھاگنے لگی اور وہاں پر بنے ہوئے ایک غار میں چھپ گئی۔ اس غار میں مکمل طور پر اندھیرا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر وہاں دیکھ رہی تھی۔ تبھی اچانک غار میں روشنی سی چمکی اور پھر جو میری آنکھوں کے سامنے منظر آیا وہ انتہائی دل دہلا دینے والا تھا۔ وہاں پر لاشیں ہی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں قبر کھود کر نکالا گیا ہو۔ تبھی اچانک اس میں سے ایک مردہ اٹھا اور اپنی مری ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بالکل ساکت تھیں لیکن آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ اب وہ دھیرے دھیرے اٹھ کر میری طرف آ رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے کانوں میں جن زادے کی آواز آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، یہ سب تمہاری نظر کا دھوکہ ہے، جلدی سے اس غار سے باہر نکلو۔ میں فوراً ہی غار سے باہر آ گئی۔ اب تو سوائے خوف سے رونے کے میرے پاس کوئی چارہ نہ بچا تھا۔
मैं सोचने लगी कि आखिर मैंने उस जिन ज़ादे के कहने में आकर ये काम करने की क्यों हामी भरी। मुझे नहीं पता था कि ये जंगल इतना खौफनाक और शैतानी मखलूक़ात से भरा हुआ होगा। उस जिन ज़ादे का दिया हुआ तावीज़ मेरे पास ही था। शायद यही वजह थी कि मैं इन शैतानी मखलूक़ात से अभी तक बची हुई थी। वो पूरी रात मेरी उसी जंगल में भटकते हुए गुजरी। थक हार कर एक दरख्त के नीचे बैठी और मेरी आंख लग गई। तभी अचानक मुझे ख्वाब में नजर आया कि 2 खौफनाक शक्ल वाले शैतानी जिन्नात मुझे घसीटते हुए कहीं लेकर जा रहे हैं। मैं उनसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल्कुल बेबस नजर आ रही थी। तभी मैंने देखा कि एक खून का तालाब वहां बना हुआ था, जिसमें वो शैतानी जिन्नात मुझे धक्का देने की कोशिश कर रहे थे। मैं अपने आप को छुड़वा ना सकी और उन्होंने मुझे उसी तालाब में फेंक दिया। अब मेरा पूरा वजूद खून में लथपथ उस तालाब में तैर रहा था। मैं अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही थी, लेकिन उस तालाब में डूबती रही। तभी मेरी उस खौफनाक ख्वाब को देखकर आंख खुली। मैं शुक्र अदा करने लगी कि ये सिर्फ मेरा ख्वाब था और कुछ नहीं। अब सुबह की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। रात के भयानक ख्वाब की निस्बत दिन कुछ साफ सा महसूस हो रहा था। शायद भूख ने भी मुझे सताया हुआ था। मैं उसी जंगल में घूम फिर कर देखने लगी कि शायद कोई खाने की चीज मेरी दस्तरस में आ जाए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। तभी मेरी नजर एक दरख्त पर पड़ी जिस पर रंग बिरंगी फल लगे हुए थे। मुझे ये देखकर हैरत हुई कि सारे ही फल एक दूसरे से मुख्तलिफ थे और उनका रंग का भी ऐसा ही था। वो दरख्त निहायत घना था और ऐसे लग रहा था कि किसी ने सदियों से उस दरख्त के फल को ना खाया हो। मैं ललचाई हुई नजरों से उस फल को देख रही थी और मुझे भूख भी लग रही थी। तभी मैं आगे बढ़ी और हाथ बढ़ाकर उस दरख्त के फल को तोड़ना चाहा, लेकिन अचानक ही मेरे कानों में उसी जिनज़ादे की आवाज़ सुनाई दी। वो जिनज़ादा मुझसे कह रहा था कि खबरदार, अगर उन फलों को हाथ लगाया तो, अगर तुमने इस दरख्त के फलों को खा लिया तो इस तावीज़ का असर ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी चीज़ खाने की कोशिश ना करना। अब मैं शदीद मायूसी की कैफियत में गिरफ्तार थी। भला कब तक अपनी भूख बर्दाश्त करती। उसी जंगल में चलते चलते अचानक मुझे ऊंची सी पहाड़ी नजर आई। वहां पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। उस पहाड़ी पर चढ़कर जाना भी आसान न था, क्योंकि एक कठिन रास्ता मेरा मुंतजिर था। भला उस खौफनाक जंगल में कौन रहता होगा, यही सोचकर मैं उसी तरफ जाने लगी। उस घर तक पहुंचने तक मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी मैंने सब्र किया और मुसलसल उसी पहाड़ पर चढ़ती रही। वो एक अजीब सी झोंपड़ी थी जो दूर से देखने पर एक घर की मानंद दिखाई दे रही थी। जैसे ही मैं उस झोंपड़ी में दाखिल हुई तो ये देखकर मैं हैरत से दंग रह गई कि वहां पर एक बुजुर्ग इंसान बैठा हुआ था, जिसके हाथ में तस्बीह थी और गले में बड़ी बड़ी मालाएं उसने पहन रखी थी। मैंने उन्हें सलाम किया तो वो सर हिलाकर मेरे सलाम का जवाब देने लगे। फिर मैं उनसे कहने लगी कि बाबा जी, मैं एक मुश्किल में गिरफ्तार हूँ। मैंने किसी से उसकी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अब मैं डर गई हूँ और वापस जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकूंगी। फिर वो बाबा जी मुझसे पूछने लगे कि कैसा मकसद है, मुझे पूरी बात बताओ। फिर मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं किस तरह से एक कैदी जिनज़ादे की तलाश में इस जंगल में आई हूँ। फिर बाबा जी मुझे कहने लगे कि हाँ, मुझे यकीन है कि वो इसी जंगल में कैद है। उसकी चीखें अक्सर मुझे सुनाई देती हैं, इसीलिए तुम इस मकसद को पूरा करके ही इस जंगल से जाना। मैं उस बाबा जी की बात सुनकर बेचारगी से उसे देखने लगी। फिर दिल में आई कि उस बाबा जी को कहती हूँ कि मुझे भूख लग रही है, अगर आपके पास कोई खाने पीने की चीज़ है तो मुझे दे दो। शायद उन्होंने मेरे दिल की कैफियत जान ली। फिर अपने थैले में से मुझे एक सेब निकाल कर दिया। वो इंतहाई लाल रंग का मीठा सेब था। उस एक सेब को खा लेने के बाद मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा पेट ऊपर तक भर गया हो। फिर मैं उन्हें खुदा हाफिज कहती हुई उस झोंपड़ी से बाहर आ गई। अभी मैं उतर ही रही थी कि मुझे अपने कानों में जिनज़ादे की आवाज़ सुनाई दी, जो मुझे कह रहा था कि ये बाबा जी हकीकत में जिंदा नहीं, बल्कि एक नेक जिन्नात की रूह थी जो तुम्हारी मदद करने की गर्ज से इस जंगल में आई थी। मैं उसकी बात सुनकर शदीद खौफजदा हो गई। फिर पीछे पलटकर देखा तो उस झोंपड़ी का कोई नामो निशान भी ना था। इसका मतलब था कि ये सब मेरी नज़र का धोखा था। सिर्फ मेरा पेट भरने की गर्ज से वो मुझे बाबा जी दिखाई दिए थे। न जाने मजीद क्या क्या मेरे साथ इस जंगल में होने वाला था।
अब मैं धीरे धीरे चारों तरफ घूम फिर कर शाम हो लेने से पहले उस दरख्त को ढूंढना चाहती थी। तभी मैं घूम फिर कर दोबारा उसी पुराने कब्रिस्तान के पास पहुंच गई। अब मुझे ये देखकर हैरत का झटका लगा कि उस कब्रिस्तान में 3-4 नन्हे नन्हे बच्चे खेल रहे थे। मैं एक दरख्त के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगी। कभी वो उछलकर दरख्त पर चढ़ जाते तो कभी नीचे आ जाते, कभी किसी कब्र पर बैठते तो उसी के अंदर गायब हो जाते और कभी बाहर निकल आते। काफी देर तक यही मंजर मेरी आंखों के सामने आता रहा। मैं बिल्कुल साकत खामोश बैठी उन्हें देखती रही। फिर मैं चुपके से दूसरी तरफ से निकली और उन झाड़ियों के बीच में चलने लगी। तभी मुझे सामने से एक सूखा हुआ दरख्त नजर आया। वहां पर मौजूद सारे ही दरख्त सरसब्ज और तरोताजा थे, लेकिन ये दरख्त इंतहाई सूखा हुआ और पुराना नजर आ रहा था। मैंने अपने बड़ों से सुन रखा था कि जिस दरख्त पर कोई अमलियात वगैरह किए जाते हैं तो उसके पत्ते सूख जाते हैं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सोचने लगी कि कहीं ये वही दरख्त तो नहीं जिसकी कैद में जिन जाती है। जैसे ही मैं उस दरख्त के पास पहुंची तो मुझे उस दरख्त में से नस्वानी चीखों की आवाजें आई। जो एक औरत थी वो कह रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तभी मेरे कानों में उसी जिनजादे की फरते जज्बात से भरी हुई आवाज सुनाई दी, जो मुझे कह रहा था कि जल्दी करो, इसी दरख्त की कैद में मेरी जिनजादी है, उसे फौरन आजाद करवाओ। मैं हैरत से चारों तरफ देखने लगी। मुझे समझ नहीं आई कि भला मुझे क्या करना होगा। तो वो जिनजादा मुझे कहने लगा कि उस लाल कपड़े को फौरन जला डालो और उसकी राख इस दरख्त पर डाल देना। अब भला मैं उस कपड़े को कैसे जलाती? फिर मैंने बड़ी मुश्किल से 2 पत्थर ढूंढे, उन्हें आपस में टकरा टकरा कर आग पैदा करने की कोशिश की। मेरी कोशिश कामयाब हुई और एक पत्थर में से चिंगारी निकली जिसने उस लाल कपड़े को पकड़ लिया। अब वो लाल कपड़ा जलकर पूरा खाकस्तर हो गया। उसकी जली हुई राख जमीन पर बिखरी थी। मैंने उस राख को इकट्ठा किया और उसे दरख्त पर पूरी कुव्वत से फेंक दिया। अब जंगल में हर तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। उसी धुएं में से एक खूबसूरत सी जिनजादी मुझे नजर आई। वो हाल से बेहाल हुई पड़ी थी। ऐसा लगता था कि सदियों बाद वो जिनजादी उस दरख्त की कैद से आजाद हुई हो। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मुझे कहने लगी कि जल्दी करो, अब हम दोनों को इस जंगल से निकलना होगा। ऐसा ना हो कि हम दोबारा किसी शैतानी जन्नात की कैद में आ जाएं। फिर थोड़ी देर बाद हम सही सलामत उस जंगल से निकल आए। अब हम उसी आसेब ज़दा घर में पहुंच गए जहां पर वो दोनों रहते थे। वो दोनों मियाँ बीवी जिनजादे और जिनजादी आपस में गले मिल रहे थे और निहायत खुश लग रहे थे। मैं उन्हें यूं हंसता मुस्कुराता देखकर दिली खुशी महसूस कर रही थी। फिर वो जिनजादा मुझे कहने लगा कि आज हम इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि मैं सिर्फ अपनी जिनजादी को पाने के लिए इस घर में आया था। वो मेरा ढेरों शुक्रिया अदा कर रहा था, लेकिन मैं सोचने लगी कि उसने मेरी मदद करने का वादा किया था, जो शायद वो भूल बैठा है। फिर मेरे देखते ही देखते वो दोनों मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गए और मैं मायूसी से उठकर अपने घर आ गई। जब मैं घर वापस आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि मेरी सास बिस्तर पर लगी पड़ी थी। वो एक हट्टी कट्टी तंदुरुस्त औरत थी, लेकिन उसे यूं बीमार हालत में बिस्तर पर पड़े देखकर मैं हैरान हो गई। तभी मेरी नंद कमरे से निकली, जिसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसे लगता था जैसे वो बहुत दिनों से रो रही हो। मैं यूं ही घर के काम काज निपटाने लगी। मुझे घर की सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही थी। भला मेरे 1 माह घर से गायब रहने के बाद घर की ये हालत कैसे हो गई। शाम हुई तो मेरा देवर अपनी नौकरी से आया। फिर मेरी देवरानी के कमरे में घुस गया। मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरी देवरानी बहुत ज्यादा बन ठन कर अपने कमरे से निकली। शायद वो लोग कहीं घूमने जा रहे थे। मेरी सास ऐसे बीमार पड़ी थी और ऐसे में मेरी देवरानी का यूं घर से बाहर घूमने फिरने जाना हैरत की बात थी। फिर थोड़ी देर बाद ही मुझे ये भी पता चल गया कि मेरी नंद के रोने की वजह क्या थी। उसकी मंगनी बचपन में ही उसकी फुफ्फो के घर हुई थी, लेकिन अब ये मंगनी टूट गई थी, जिसकी वजह से वो रो रो कर बेहाल हुई पड़ी थी। ये बात मुझे मेरी छोटी नंद ने बताई थी। फिर जब मैंने उससे चुपके से पूछा कि अम्मा को क्या हुआ है और वो ऐसे बिस्तर से क्यों लगी पड़ी हैं, तो वो मुझे कहने लगी कि जब से छोटी भाभी इस घर में आई है अम्मा बीमार रहने लगी हैं। अब अम्मा से खड़ा भी नहीं हुआ जाता, उन्हें चक्कर आते हैं और वो नीचे ज़मीन पर गिर जाती हैं। ना जाने अम्मा को क्या हो गया है। मैं हैरान थी कि ये सब घर में क्या हो गया।
ऐसा तो आज तक ना हुआ था। मैं अब भी उसी कमरे में सो रही थी जो छत पर बना हुआ था। इसीलिए जैसे ही रात को सोने के लिए गई तो आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई जब मैंने अपने सामने किसी को खड़े हुए पाया। मैं ये देखकर हैरान थी कि वही जिन ज़्यादा मेरे सामने खड़ा था। फिर मैं उसे देखकर नाराज़गी से देखने लगी। उससे कहने लगी कि तुमने तो मेरी मदद करने का वादा किया था, लेकिन अपनी बीवी जिन ज़ादी को लेकर तुम फौरन यहाँ से चले गए। फिर वो मुस्कुराया, मुझे कहने लगा कि अब तुम्हारी मदद करने का टाइम आ गया है। मैं तुम्हारी मदद करने की गर्ज से ही तुम्हारे सामने आया हूँ। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम्हें अपने घर में जगह बनानी है तो तुम्हें इन घर वालों की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो सूरत हाल इस घर की हो रही है, ऐसे में अगर तुम उनकी मदद करोगी तो उनके दिल के रास्ते तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तुम्हारी नंद की जो मंगनी टूटी है और तुम्हारी सास की जो हालत है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम्हारी देवरानी है। मैं उस जिनजादे की बातें हैरत से सुन रही थी। फिर उसे कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आई, भला मेरी देवरानी का इस सब में क्या हाथ है। फिर वो मुझे कहने लगा, तुम्हारी देवरानी एक इंतहाई चालाक और मक्कार औरत है। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर इस पूरे घर पर काला जादू करवा दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी नंद की मंगनी टूट गई है और तुम्हारी सास बिस्तर से लगी पड़ी है। अब तुम मौलवी के पास जाओ और उससे भले इस बात की तस्दीक करवा लेना। अब तुमने मेरे बताए हुए तरीके पर अमल करना है। जब तुम ये सारा काम कर लोगी तो खुद ब खुद अपने घर वालों के दिलों में जगह बना लोगी। फिर उस दिन जिनजादे ने जो जो बातें मुझे बताई, मैं उन्हें सुनकर खुश हो गई थी। फिर दूसरे दिन मैंने हिम्मत की, अपनी सास को कहने लगी कि अम्मा, मैं आज आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आपको मैं इतने सालों से देखती आ रही हूँ, लेकिन आज तक आप बिस्तर से ऐसे ना लगी थी जैसे अब लग गई हो। इसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आपकी छोटी बहू का हाथ है। उसने आपके ऊपर तावीज़ करवाए हैं जो आपके तकिए के अंदर रखे हुए हैं। मेरी सास हैरत से मुझे देख रही थी। ये तावीज़ वाली बात मुझे उसी जिनजादे ने बताई थी। जैसे ही उन्होंने तकिए को देखा तो वाकई उसमें से 3-4 तावीज़ निकले। फिर मैंने इसी तरह अपनी नंद के कमरे में से भी बहुत से तावीज़ निकलवाए जो उसने मुख्तलिफ कोनों में छुपा कर रखे हुए थे। फिर मेरी सास और नंद और मैं एक मौलवी के पास जा पहुंचे जो हमारी गली में ही रहता था। जैसे ही मेरी सास ने मौलवी को वो तावीज़ दिखाए तो वो कहने लगा कि हाँ, ये बात सच है, ये ख़तरनाक अमलियात वाले तावीज़ात हैं जो किसी इंसान पर काला जादू करवाने की गर्ज से करवाए जाते हैं। अब मेरी सास ने मुझे बड़ी नरम निगाहों से देखा, कहने लगी कि बेटी, तू तो सच कह रही थी, वाकई में ऐसा ही है। उस दिन मेरी देवरानी अपनी माँ के घर गई हुई थी, लेकिन सबको ही अब उसके आने का शिद्दत से इंतज़ार था। जैसे ही मेरी देवरानी घर आई तो मेरी सास उस पर झपट पड़ी और उसे फौरन बाजू से पकड़ लिया। फिर मेरी सास कहने लगी कि मैंने तो तुझे इतनी इज्जत दी थी, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया? मेरा घर उजाड़ने पर तुली हुई थी। आज तक मैं जिसे मनहूस बोलती आई, उसने मेरा घर उजाड़ने से बचा लिया। ये तू ही है जो इस घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज के बाद मैं तेरे कदम इस घर में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी। आज से मेरी बड़ी बहू यही है। मेरी सास ने मेरी तरफ इशारा किया और मुझे अपने गले से लगा लिया। मेरी देवरानी गर्दन नीचे करके खड़ी थी और देवर भी उसे गजबनाक नज़रों से देख रहा था। फिर अपनी माँ को कहने लगा कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये और इसकी माँ इतनी घटिया चाल चलेंगी। आज ही मैं इसे इस घर से निकाल रहा हूँ। फिर मेरी देवरानी मेरे देवर के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि मैं अपने किए की माफ़ी मांगती हूँ। खुदा के लिए मुझे इस घर से ना निकालो, अभी मेरी शादी को दिन ही कितने हुए हैं। फिर मैं भी अपने देवर को समझाने लगी कि उसे गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए उसे माफ़ कर दो। यूं चारों तरफ एक बार फिर से इस घर में खुशियाँ आ गई, लेकिन अब की बार ये खुशियाँ मेरे नसीब में भी थी, क्योंकि मेरी सास मुझे बहुत इज्जत देने लगी थी। मेरी नंद मुझे कहती थी कि शुक्र है भाभी ने हमें सब कुछ बता दिया, वरना हमें तो सारी ज़िंदगी पता ही ना चलता कि हमारे घर में इतनी परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। फिर जहाँ पर मेरी नंद का रिश्ता टूटा था, मैं अपनी सास के साथ उनके घर गई तो वो लोग दोबारा रिश्ता करने पर राज़ी हो गए थे। फिर एक दिन मेरी सास मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो अपने घर में मौजूद हीरे जैसी लड़की को पहचान ना सकी। मेरे बेटे का मरना तो शायद खुदा की हिकमत थी, लेकिन मैं तुझे इसकी जिम्मेदार ठहराती आई। आज के बाद तेरे लिए अपनी बहू जैसा नहीं बल्कि अपनी बेटी समझकर सोचूंगी। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि नाज़ों के साथ मैं तेरी भी शादी कर दूं, कोई अच्छा सा रिश्ता तेरे लिए देखकर।
वैसे भी मुझसे कई लोगों ने तेरा रिश्ता मांगा है, लेकिन मैंने अपनी जलन और खुद गर्जी में उन रिश्तों से इनकार कर दिया था। लेकिन अब मैं तुझे बेटी समझकर इस घर से रुखसत करूंगी। उनकी ये बातें सुनकर मैं सरशार सी सर झुका कर रह गई। आखिर मेरे दिल के आंगन में भी खुशियों के फूल खिलने वाले थे। फिर चंद दिन बाद ही एक सरकारी नौकरी वाले लड़के का रिश्ता मेरे लिए आया और मेरी सास ने उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब मेरी और मेरी नंद नाजो की शादी साथ साथ ही हो रही थी। मैं माइयों के जोड़े में मलबूस छत पर खड़ी थी जब अचानक मुझे अपने पीछे से किसी की आवाज़ आई। वो जिन ज़्यादा था जो मुझे कह रहा था कि देखो मैंने किस तरीके से तुम्हारी मदद की, अब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ कोई परेशानी ना रहेगी। मैं भी उसका शुक्रिया अदा करने लगी। बिलाशुबा उस जिनज़ादे ने अपना वादा पूरा कर दिखाया था। मैंने उसके लिए ज़िंदगी में आसानी की थी तो बदले में उसने भी मेरी ज़िंदगी मुझ पर आसान कर दी थी। 2 दिन के बाद मुझे इस घर से रुखसत हो जाना था, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।